फ्रेंड्स, आज हम लोग फंक्शंस के बारे में जानते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन? सो लेट अस राइट इट। We begin with the definition. A relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. या फिर दूसरी तरह से हम इसको कह सकते हैं, ए फंक्शन इज ए रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B, such that the domain of F is A and no two distinct ordered pair and no two distinct ordered pair in F have the same first element. If F is a function from A to B and A comma B belongs to F, then f of A equal to B, where B is called the image of A, the image of A under F, and A is called the pre-image of B. Under F.
यूजुअली इसको डिनोट करेंगे हम, फंक्शन को a से b की तरफ जो डिनोट करेंगे वो ऐसे करेंगे, f इज सच दैट a टेंड्स टू b। तो ये हम डेफिनेशन हो गया हमारे फंक्शन का। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू इसको समझते हैं। Let n be the set of natural numbers. Let n be the set of natural numbers and relation R be defined on n such that R is x comma y such that y equal to 2x, x comma y belongs to n. What is the domain? Codomain and range of R. And range of R. Is this relation a function? ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन और इसको डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारी? लेट एन बी, जो क्वेश्चन पूछा है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। सो बाय डेफिनेशन, अच्छा फंक्शन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू 2x। नाउ इफ यू से आपके पास सेट ए ले लेते हैं। सो सेट ए इज 1 1 2 3। सेट ए क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 3 4 एंड सो ऑन। और सेट बी भी एन ही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा? जब x की वैल्यू 1 है, सो मैं इसका मैपिंग किधर होगा? 2 पे। व्हेन x की वैल्यू 2 है, सो इट विल बी मैप्ड एट 4, एंड व्हेन x की वैल्यू 3 है, सो इट विल बी मैप्ड एट 6, right? So if we see this through definition of a function, so every element of A has a unique element in B, so we can clearly say that ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। ओके, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा?
इसका डोमेन, सो डोमेन विल बी n, सो हम लिख सकते हैं डोमेन इज set of natural numbers n, set of natural numbers हम लिख सकते हैं n, या इसको ऐसे लिखना है तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सो ये डोमेन हो गया। व्हाट अबाउट रेंज? डिड वी नोटिस रेंज क्या है? रेंज इज 2 4 6, so this is the set of all even numbers, we can call it even natural numbers. Or what is the codomain? So codomain is same as 1 2 3 4 5 and so on, माने this is same as n. Okay, so it qualifies the definition of a function, इसलिए हम clearly कह सकते हैं y is equal to 2x is a function. चलिए एक और illustration करते हैं। Examine each of the following relation. Examine each of the following relations given below and state in each case giving regions whether it is a function or not. It is a function or not. हम इन स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं। R is 2, 1 2, 1 3, 1 4, 2 second is R 2, 2 2, 4 3, 3 4, 4 and the third R is 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7। तो सबसे पहला रिलेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो हम क्या देख रहे हैं रिलेशन में? जो ए साइड है वो है 2 3 4 एंड बी साइड क्या है? 1 2। ओके, so let us examine the mapping part. 2 is mapped with 1, 3 is also mapped with 1 and 4 is mapped with 2.
So every input has a unique image. Therefore R is a function. So we can declare R is a function. सेकंड को इन्वेस्टिगेट करते हैं. R की क्या वैल्यू है? R है 2 2 2 4 3 3 3 4. So let us investigate. A B रख सकते हैं. So हमें क्या मिलेगा? 2 3 4 A साइड में. और B में क्या है? 2 4 2 3 4. ओके, 2 4 या 2 3 4 वी कैन राइट ऑल्सो. सो मैप करें. 2 की मैपिंग 2 से है, फिर 2 की ही मैपिंग 4 से है, देन 3 की मैपिंग 3 से है, एंड 3 की मैपिंग 4 से. बट डेफिनीशन जो फंक्शन की है उसमें ये क्वालिफाई नहीं करता, बिकॉज इनपुट 2 जो 2 एज एन इनपुट है, इट हैज़ 2 प्री इमेज, इट हैज़ 2 images, so which does not qualify as a function. These are the 2 mapping. So ये function, it does not qualify to be called as a function. So relation is a, we will write the given relation is not a function. आपको समझ में आ गया होगा ये. थर्ड सेट इन्वेस्टिगेट करते हैं. R 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7. तो यहाँ पे हमें देखें तो इनपुट वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 6. और आउटपुट वैल्यूज़ क्या हैं? 2 3 4 5 6 7. सो 1 मैपिंग 1 2 से मैप हो रहा है, 2 3 से मैप हो रहा है, 3 4 से मैप हो रहा है, 4 5 से मैप हो रहा है, 5 6 से, और 6 7 से. यूनिक मैपिंग है, सो इट इज़ ए फंक्शन. Since it is uniquely mapped, so it is a function. So function, through these illustrations आपको फंक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं. फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. सबसे पहले फंक्शन लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? f is such that r tends to r, and function is defined as y is equal to f of x is equal to x, or simply y is equal to x. And if I have to draw this function graphically, so graphically ये हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. This is origin x, x dash, y, y dash, and then we draw so this line
y is equal to x. So this will be the function, or we can also write it fx is equal to x. Now we take another function and its name is constant function. Constant function. Define the function f. How do we define this function f as? Again f, r tends to r, and function is defined by y is equal to f of x is equal to c, where c is some constant and x belongs to r. So we can say c is a constant. C is a constant. Clear? So if I have to, तो डोमेन क्या हो जाएंगे ऐसे फंक्शन के? Domain will be, domain is also R, and range will be C, only C ऐसे लिखेंगे. और इसको डिपिक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो डिपिक्ट करना हो तो आप इसको अगेन x dash y dash and simply draw a constant function line, and this is your c. So we can say y is equal to c. Okay, or we can also say y is equal to f of x equal to c. Now c can be any constant, maybe y is equal to 2, y is equal to 3, or any real values. Now let us take up the third function, and the third function would be polynomial function. Polynomial function. So simply polynomial function would be like f is such that r tends to r, and we can say by defined by y is equal to x square, where x क्या है? x belongs to real valued function. So अभी इसको हमें डिपिक्ट करना हो ग्राफिकली तो कैसे करेंगे? Let us simply draw your x axis and y axis. Origin, and the graph would be like this. So this is your y equal to x square, or you can even write f of x equal to x square. So let us take a fourth function. Let us take fourth function as yet another polynomial function. We will take a cubic polynomial. Cubic polynomial function. पिछली बार हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, इस बार हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, obviously f would be such that r tends to r, और इसको ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे x dash y dash o, and the function would be drawn something like this. So ये क्या लिखेंगे हम? y is equal to x cube. Next function we take
let us take rational function. Okay, so in any case rational function की टाइप कैसी होती है? इसकी टाइप होगी f(x) अपॉन gx, and gx should not be 0. g of x should not be 0. और and f of x, g of x क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस. ओके, या इसको बीच में लिख दो आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. एक इलस्ट्रेशन से ड्रॉ करके देखते हैं कुछ एक और फंक्शन. लेट अस टेक एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन. डिफाइन द real valued function f such that r minus 0 tends to r. That means input values are all real values except 0. and define function की definition क्या है? defined by y equal to 1 upon x. तो हम क्या करें? एक तरीका तो ये है कि हम एक टेबल बना लेते हैं. सो आप देखेंगे कि एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन x. अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ लिखते हैं. तो लेट अस से x की वैल्यू सपोज हमने -2 ले ली, तो यहाँ -0.5 आ जाएगी. अगेन इफ़ वी टेक द वैल्यू लेट से -1.5, सो ये वैल्यू आएगी 0.67. एंड देन नेक्स्ट इज -1 ले लेते हैं, सो ये वैल्यू सिंपली -1 आएगी. फिर -0.5 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2. फिर हम 0.25 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई. फिर हम 0.5 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी. तो हमें यहाँ 2 लिखना होगा. फिर हम 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई. फिर 1.5 ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी 0.67. एंड एक और वैल्यू ले लेते हैं 2, यहाँ पे 0.5. अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करिए. सो जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, फंक्शन हमारा कुछ फंक्शन होगा इस तरह से. और इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? f of x इक्वल टू 1 अपॉन x. यहाँ इसमें नोट करने की बात यह है कि फंक्शन कहीं भी जीरो वैल्यू पे फंक्शन इनवैलिड है. इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज़ नो वैलिड आउटकम. सो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं. एक और फंक्शन लेते हैं हम. दिस टाइम द फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन, हम मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करें? मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है f(x) इक्वल टू x
whenever x is greater than or equal to 0 and its value is minus x whenever x is less than 0. ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है. मॉड्यूलस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए ड्रॉ करते हैं. तो मॉड्यूलस फंक्शन इज like this. So this function would look like it will remain above x axis क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी x इनपुट की आउटकम विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं सिग्नम फंक्शन. एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करेंगे सिग्नम function. So f r tends to r defined by डिफाइंड कैसे करेंगे? f of x लिख लीजिए और यहाँ इसकी वैल्यू x है या हम इसको कहेंगे 1 0 माइनस 1. जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी x की वैल्यू 0 है एंड इफ़ x इज़ लेस देन 0. सो यहाँ लिखते जाइए इफ़. तो ये क्या फंक्शन हुआ? इसको कहेंगे हम सिग्नम फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन को हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे आपको लेट अस से ये फंक्शन आपका राइट साइड में ऐसे जाएगा. यहाँ लिख सकते हो y इक्वल टू 1 और लेफ्ट साइड में हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड में हम y इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है और यहाँ पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा 0 पे. सो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे. एक फंक्शन हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको यहाँ लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is such that r tends to r. और इसको डिफाइन करते हैं f of x इस तरह से बड़े ब्रैकेट्स के अंदर एंड x बिलोंग्स टू r. ओके. सो दिस फंक्शन assumes the value of greatest integer less than or equal to x. Also such a function is called the greatest integer function. तो चलिए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं. या पहले थोड़ा सा मान लो मुझे लिखना है लेट अस से x इज इक्वल टू -1. तो वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ रहेंगी मेरी? 4 -1 इज ग्रेटर और लेस देन x इज लेस देन 0. सिमिलरली x की वैल्यू मान लो मैं 0 लिख दूँ तो मेरी वैल्यू किससे किसके बीच में रहेगी? 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1. x इज़ 1 4 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2. और यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ 2 देन
यहाँ पे 2 लेस देन एक्स इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अब इसको डिपिक्ट कैसे करें, ग्राफ कैसे करें। सो ग्राफ करने के लिए आप अपना चलिए ग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले अभी जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लेट्स से 2 3 4। सो 1 से और यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4। सो 1 एंड 2 के बीच में ये फंक्शन कैसा रहेगा, लाइक दिस। 2 से 3 के बीच में ऐसे दिखाएंगे, 3 से 4 के बीच में ऐसे देखेंगे, ओके। एंड देन लाइक दिस। अब हम -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ऐसे रहेगा। ओके so this is the depiction of this graph, and we call such a graph is f of x as greatest integer function of x. So I hope you must have understood everything about function. आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दो फंक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड टू रियल वैल्यूड फंक्शन को इसका क्वोशंट कैसे निकालते हैं, और उसके कुछ इलस्ट्रेशंस भी करके देखेंगे। सो वी विल क्लोज दिस हियर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।